पहुंचाना चाहता है उसमें हमें पहुंचा दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। धर्मी उसमें तोड़ते हैं, सुरक्षा पाते। यीशु हमारी चट्टान, यीशु में हम हैं सुरक्षित सदा। यीशु वो नाम देता सारे नामों से ऊपर, हर घुटना टीकेगा यीशु नाम के आगे। थैंक यू जीसस। आइज़िया 13-14 चैप्टर पढ़ेंगे हम किंग्स जेम्स वर्जन में से। God threatens to destroy Babylon by the Medes. First verse से पढ़ेंगे। The burden of Babylon which Isaiah the son of Amos did see, lift ye up a banner upon the high mountain, exalt the voice unto them, shake the hand, that they may go into the gates of the nobles. I have commanded my sanctified ones, I have also called my mighty ones, for mine anger, even them that rejoice in my highness. The noise of a multitude in the mountains, like as of a great people, a tumultuous noise of the kingdoms of nations gathered together. The Lord of hosts mustered the host of the battle. They came from a far country, from the end of heaven, even the Lord, and the weapons of his indignation to destroy the whole land. Howl ye, for the day of the Lord is at hand. It shall come as a destruction from the Almighty. Therefore shall all hands be faint, and every man's heart shall melt. And they shall be afraid. Pangs and sorrows shall take hold of them. They shall be in pain as a woman that travelleth. They shall be amazed one at another. Their faces shall be as flames. Behold, the day of the Lord cometh, cruel, both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. Hallelujah. For the stars of heaven and constellations thereof shall not give their light, the sun shall be darkened. Hallelujah. देखो ये लाइट जो वर्ड है इसको हम हिब्रू भाषा में देखेंगे बाद में। The sun shall be darkened in his going forth, the moon shall not cause her light to shine. ये जो मैं लाइट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका मतलब बनता है इंस्ट्रक्शंस। हम इब्रानी में जाके देखेंगे, इब्रानी के भाषा में, यूनानी के भाषा में इसका, इब्रानी के भाषा में इसका मतलब क्या है हम देखेंगे उसको। ओके, क्योंकि अगर ये ऐसा है कि ये इंस्ट्रक्शंस इसका मतलब निकलता है तो इसका मतलब जो हम मून फेसेस के बारे में जानकारी इकट्ठे किए थे वो लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ओके, चांद इंस्ट्रक्शंस देता है, सूरज इंस्ट्रक्शंस देता है, उनके अंदर से कोई स्पिरिट्स है जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं लोगों को, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको निश्चित देखेंगे बाद में इसका मतलब क्या है। 11 वर्स से आगे, एंड आई विल पनिश द वर्ल्ड फॉर देयर इविल एंड द विकेड फॉर देयर इनिक्विटी, एंड आई विल cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. I will make a man more precious than fine gold, even a man than the gold wedge of here. Therefore I will shake the heavens. देखो, heavens के बारे में जो लोग बहुत घमंड करते हैं ना कि अंधकार की शक्तियाँ, आकाश के अंधकार की शक्तियाँ, दुष्ट शक्तियाँ, उसको भी हिला देता है परमेश्वर। ओके, तो एंड द अर्थ शैल रिमूव आउट ऑफ हर प्लेस in the wrath of the Lord of hosts and in the day of his fierce anger. मिट्टी भी कोई
ताकत नहीं रखती है और ना ही आसमान कोई ताकत रखता है। ये जब परमेश्वर का क्रोध का समय आएगा, वो समय में सब कुछ हिला दिया जाएगा। ओके, and it shall be as the chased roe, and as a sheep that no man taketh up, they shall every man turn to his own people, and flee every one into his own land. Every one that is found shall be thrust through, and every one that is joined unto them shall fall by the sword. Their children also shall be dashed to pieces before their eyes. Their houses shall be spoiled, and their wives ravished. Behold, I will stir up the Medes against them, which shall not regard silver, and as for gold, they shall not delight in it. देखो, ये एक वचन है, ध्यान रखना इसको, 17 वचन, ये सारा वॉरफेयर में काम आने वाले वचन रहते हैं इसमें। Their bows also shall dash the young men to pieces, and they shall have no pity on the fruit of the womb. Their eye shall not spare children. And Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldees, excellency shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. It shall never be inhabited, neither shall it be dwelt in from generation to generation. Neither shall the Arabian pitch tent there, neither shall the shepherds make their fold there. But wild beasts of the desert shall lie there, and their houses shall be full of doleful creatures, and owls shall dwell there, and satyrs shall dance there, and the wild beasts of the islands shall carry in their desolate houses, and dragons in their pleasant palaces. And her time is near to come, and her days shall not be prolonged. चैप्टर 14, ये सारा वॉरफेयर का वचन है। आपने अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे। गॉड्स मर्सीफुल रेस्टोरेशन ऑफ इसराइल, Israel's triumph in the fall of Babylon. First verse say, for the Lord will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land, and the strangers shall be joined with them, and they shall cleave to the house of Jacob. And the people shall take them and bring them to their place, and the house of Israel shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids, and they shall take them captives, whose captives they were, and they shall rule over their oppressors. And it shall come to pass in the day that the Lord shall give thee rest from thy sorrow, and from thy fear, and from the hard bondage wherein thou wast made to serve. Hallelujah. तो परमेश्वर के अंदर एक विश्राम का दौर भी रखा हुआ है। आप हियाव नहीं छोड़ना है, उस दौर में पहुंचेंगे आप निश्चित, अगर आप परेशानियों से होकर चल रहे हैं तो। That thou shalt take up this proverb against the king of Babylon, and say, how hath the oppressor seized the golden city seized? आप पूछने लगेंगे कैसे संभव हो गया कि अब कोई मुझे सता नहीं रहा है। 5 वचन से आगे, the Lord hath broken the staff of the wicked and scepter of the rulers. Hallelujah. तो क्या कारण हो गया है कि अब कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है? तो इसका कारण 5 वचन है। He who smote the people in wrath with a continual stroke, he that ruled the nations in anger, is persecuted, and none hindereth. The whole earth is at rest and is quiet. They break forth into singing. ये अर्थ मतलब हम मनुष्य जाति है। ओके, अब देखो जो मसीह में है उनका सुबह कैसे होता है? आनंद के साथ होता है ना, क्योंकि अब वो शांति में प्रवेश कर चुके हैं। उनके अंदर गीतों के धुन निकलने लगती है, उनके अंदर हाथ ऊंचे होकर परमेश्वर को आराधना देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम आनंद में और शांति में अब प्रवेश कर चुके हैं।
डर हमसे दूर कर दिया प्रभु ने, ओके, दुख हम में से दूर कर दिया, ओके, और हमको ऐसे समय में लेकर आया कि हम अब उन बातों के बारे में परमेश्वर से पूछताछ करते, ये कैसे संभव हो गया। तो ये वचन है 5-6 में कि परमेश्वर ने अपना क्रोध उन शक्तियों को दिखाया। हालेलुया। आपने देखा? नहीं। मैंने देखा? नहीं। काम क्यों ऐसा हम विश्राम करने में आ गए? क्यों हमारे अंदर ये आनंद शांति का समय आ गया? क्योंकि परमेश्वर ने युद्ध किया और हमारे शत्रु शक्तियों को गिरा दिया। हालेलुया। ध्यान रखना, जब भी आप आनंद करते हुए उठते हैं, जब भी आप परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर आराधना करने के लिए हो जाते हैं, तो आपकी जीत आप उसका मना रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं। इसका कारण क्या है? आपने विश्राम में प्रवेश किया। और किसने कराया? परमेश्वर ने आपके शत्रुओं को मारा, और तब से लेकर आप विश्राम में रहने लगे और आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। ये मेरे साथ है, क्योंकि कुछ समय मैंने भी ऐसे परेशानियों में निकाले थे, लेकिन अब सुबह निकलती है, जब से मैं प्रभु में आ चुकी हूँ, उस दिन से लेकर अभी तक, जब उठती हूँ तो प्रभु 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 करते हुए, सोती हूँ तो ये सोचकर कि अब प्रभु 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 करते हुए सोना है। ओके, तो मेरे अंदर दिन शुरू होता है प्रभु प्रभु प्रभु, और दिन खत्म हो जाता है प्रभु प्रभु प्रभु, फिर दिन आता है प्रभु प्रभु प्रभु। मेरे लाइफ में दूसरा कोई एम्बिशन ही नहीं है। ये समय कैसे आ गया मेरे लाइफ में? मेरा पीछा करने वाले शत्रुओं को तोड़ा मेरे खुदा ने। हालेलुया। और मैं उद्धार में आ गई और मेरा ये समय आ गया, मेरे हाथ लग गया। आमीन। 8 वचन से आगे पढ़ेंगे। Yea, the fir trees rejoice at thee, and the cedars of Lebanon, saying, Since thou art laid down, no failure is come up against us. Hell from beneath is moved for thee to meet thee at thy coming. It stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth it hath raised up from their thrones, all the kings of the nations. All they shall speak and say unto thee, Art thou also become weak as we? Art thou become like unto us? Thy pomp is brought down to the grave, and the noise of thy viols. The worm is spread under thee, and the worms cover thee. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High, yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. They that see thee shall narrowly look upon thee, and consider this, saying, Is this the man that made the earth to tremble, that did shake kingdoms? Hallelujah. That made the world as a wilderness, and destroyed the cities thereof, that opened not the house of his prisoners? All the kings of the nations, and even all of them, lie in glory, everyone in his own house. But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain, thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit, as a carcass trodden under feet. Thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed thy land and slain thy people. The seed of evildoers shall never be renowned. Prepares laughter for his children for the iniquity of their fathers, that they do not arise, nor possess the land, nor fill the face of the world with cities. देखो, परमेश्वर दुष्टता को भरने नहीं देता है इस पृथ्वी के अंदर, इस जगत के अंदर। ये ध्यान रखो इस बात को, ओके? ये याद रखो, ये वॉरफेयर का चैनल में लेने वाला वचन है।
For I will, 22 वचन से 22 वचन से आगे, For I will rise up against them, said the Lord of hosts. इसके लिए हम वायलेंट और एग्रेसिव होकर शैतानी आत्माओं को झटकारते हैं, झड़कारते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के ऊपर राज्य नहीं करना है। आमीन। ये परमेश्वर ऐसा है, देखा। इसके लिए वो परमेश्वर के गुणों को ऊंचा करता है और सामर्थ्य को देता है। आमीन। प्रेरितों के काम में लिखा है ना, जब तक तुमको सामर्थ ना मिले तब तक तुम यहाँ से जाओ मत, क्योंकि वही तुम गवाही देने में इस्तेमाल करने वाले हैं। और फिर आप जब दूर दूर जाएंगे तो आप अपने दायरे के बाहर जा रहे होते हैं, तो उस दूसरे दायरे के शक्तियाँ तुमको परेशान करेगी, तो उस जगह में तुम पावर को इस्तेमाल करोगे। ओके, इसके लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने प्रेरितों में कहा था चेलों से कि तुम जाना नहीं जब तक पावर तुम्हारे ऊपर उतर कर नहीं आए। ओके, तो हम क्यों पावर लेकर चलना है? क्योंकि हर एक दुष्ट आत्माओं के अड्डे है, क्षेत्र है। ओके, उस क्षेत्र में जाकर हमको यीशु का सुसमाचार देना है, लेकिन वो क्षेत्र किसी दुष्ट के कब्जे में है, अंधकार के शक्ति के कब्जे में है। तो उसके अंदर के लोगों को छुड़ाने के लिए उसके शक्तियों के साथ फाइट करना पड़ेगा। वो शक्तियाँ आपके साथ फाइट करेगी। ओके, फाइट के बाद आप जीतने हैं, इसीलिए जीतने के लिए आपको पावर दिया जाता है। और वो पावर लिए बिना आप अगर प्रभु की सेवा में उतरेंगे तो आप निश्चित है फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपको विरोध करने वाली शक्तियाँ आपके पीछे पड़ती है। ओके, तो वो शक्तियों को हराने के लिए आप भी शक्तिमान, सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य को लेकर आपने चलना है। ठीक है, तो आप जो बोलते हैं ना, मैं सेवा करती हूँ, अकेले जाती हूँ, यहाँ वहाँ होती हूँ, वो ये करते हैं, वो करते, आप शक्तियों से निपट रहे होते हैं। उस समय सेवा करना, शक्तियों का मुकाबला करना भी उसमें बनता है। ठीक है, आप कुड़कुड़ा नहीं सकते हैं फिर मैं मसीह में हूँ, क्यों मेरा विरोध हो रहा है? तो विरोध नहीं होना है तो सुसमाचार मत सुनाइए। ओके, चुपचाप बैठे रहिए, क्योंकि शक्ति जो दिया परमेश्वर ने वो इसीलिए दिया है कि आपका विरोध होने वाला है। ओके, क्यों होने वाला है? क्योंकि आप गवाही देने वाले हैं लोगों को, जाकर आप परमेश्वर के बारे में दिखाने वाले हैं लोगों को, तो उसके विरोध में तो बैठी हुई है उसके शक्तियाँ। ओके, तो वो शक्तियाँ आपको पीछे ढकेलेगी, वो आपको काम करने नहीं देगी, आपको उसको रोकना है, आपको उसके ऊपर प्रभुता करना है। और एक बार पढ़ेंगे हम 19 वचन से एक बार पढ़ेंगे और But thou art cast out of thy grave like an abominable branch, and as the raiment of those that are slain thrust through with a sword, that go down to the stones of the pit as a carcass trodden under feet. 20 verse, thou shalt not be joined with them in burial, because thou hast destroyed thy land and slain thy people. The seed of evildoers shall never be renowned. 21 verse, prepares laughter for his children for the iniquity of their fathers, that they do not arise, not possess the land, nor fill the face of the world with cities. 22 verse, for I will rise up against them, said the Lord of hosts, and cut off from Babylon the name and remnant, and son and nephew, said the Lord. I will also make it a possession for the bittern and pools of water, and I will sweep it with the besom of destruction, said the Lord of hosts. The Lord of hosts hath sworn, saying, surely as I have thought, so shall it come to pass. And as I have purposed, so shall it stand. 25 verse से आगे, that I will break the Assyrian in my land, and upon my mountains tread him underfoot. Then shall his yoke depart from off them, and his burden depart from off their shoulders. This is the purpose that is purposed upon the whole earth, and this is the hand that is stretched out upon all the nations. For the Lord of hosts
hath purposed, and who shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? In the year that King Ahaz died was this burden. Rejoice not, thou whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken, for out of the serpent's root shall come forth a cockatrice, and his fruit shall be a fiery flying serpent. And the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety. And I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant. Howl, O gate, cry, O city, thou whole Palestina, and dissolved. For there shall come from the north a smoke, and none shall be alone in his appointed times. What shall one then answer the messengers of the nation? That the Lord hath founded Zion, and the poor of his people shall trust in it. हम हिंदी में इन वचनों को पढ़ेंगे। जब मैंने एक बात देखा है, जब गदरीन के लोग जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त इंसान था गदरीन का, उसके अंदर से जब दुष्ट आत्माओं के गैंग ने यीशु मसीह को देखा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आकर नमन किया यीशु मसीह को और पूछने लगे, तू इतनी जल्दी क्यों आया है? क्या हमको सताने के लिए आया है? तो वो बोलने लगी, तू हमको इस जगह से निकाल मत, चाहिए तू हमको सुअरों में भेज दे, लेकिन तू हमको इस जगह से निकाल मत। ओके, जब उन्होंने देखा कि वो इस जगह से निकाल ही देने वाला है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू हमको सुअरों में भेज दे। ओके, तो आपको मैंने एक क्वेश्चन रखा था मेरे अंदर से कि प्रभु किन चीज़ से ये डरे थे? कौन सी बात थी कि इनको डर लगा था? ये शक्तियाँ क्यों ऐसे यीशु मसीह के सामने इतने हलीम हो गई? क्या कारण है कि दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के आगे इतनी हलीम हो जाती हैं? मेरा क्वेश्चन था ये परमेश्वर से, और मैं निश्चित आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसके बारे में। हम पढ़ेंगे आगे यशायाह 13 अध्याय। और मेरा ये भी सवाल था परमेश्वर से कि दानियेल को कैसे परमेश्वर शेर ने नहीं खाया? आग ने कैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो को नहीं जलाया? ओके, मेरा ये भी क्वेश्चन था परमेश्वर से। और एक क्वेश्चन ये भी था कि परमेश्वर इज़राइलियों के शरीर समय के अनुसार डिग्रेड क्यों नहीं हुए थे? जब वो 40 सालों तक वो जंगल के रास्ते चल रहे थे, उनके पैरों के जूतियाँ भी बदली नहीं, टूटी नहीं, ओके, घिसी नहीं, और ना ही उनके शरीर के कपड़े मैले हुए, गंदे हुए या निकालने पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनको। ये ऐसा कैसा? मतलब वो शरीर का भी रचना उनका चेंज नहीं हुआ 40 वर्षों तक। ओके, तो मैंने परमेश्वर से पूछा था ये क्या सीक्रेट है? तो एक जवाब तो मुझे मिल गया। परमेश्वर ने वहाँ पे उनको क्या खिलाया था? मन्ना खिलाया था। हालेलुया। ओके, उनको मन्ना खिलाया था परमेश्वर ने। वो जो खाना खा रहे थे वो मन्ना खा रहे थे। ओके, वैसे ही परमेश्वर का ये भी एक है कि मूसा कैसे 40 दिन और रात परमेश्वर तेरे सम्मुख बिना खाए पिए रहा। ओके, तो वो भी मेरा क्वेश्चन था। यीशु मसीह कैसे जंगलों में लेके गया था, कैसे उसको लेके गया, वो भी मेरा क्वेश्चन था। ओके, और उसको कंगूरे के ऊपर शैतान लेकर गया था, वो कैसे शैतान कैसे लेके जा सकता है उसको? ये सारा क्वेश्चन था मेरा। ओके, और पतरस ने कैसे परमेश्वर पिता यीशु मसीह को पूछा और कैसे क्या वो पानी के ऊपर निकल पड़ा और पानी ने उसे डुबाया नहीं। ओके, यीशु कैसे पानी के ऊपर चला,
बहुत, और यीशु मसीह कब्र में था, फिर भी उसका शरीर इतना लताड़ा गया था, इतना कुचला गया था, इतना, बाइबल का वचन कहता है उसने मुंह से आह तक निकाला, उसका शरीर मनुष्य का सा दिखाई नहीं दे रहा था, वो मांस का गोला जैसे टुकड़ा टुकड़ा हो चुका ऐसा दिखाई दे रहा था। और फिर वो पुनरुत्थित हुआ तो भले चंगे इंसान के जैसा इंसान होकर बाहर निकल आया। और पतरस यूहन्ना जब मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, समुद्र पर जाल लगा रहे थे, तो उनको सामना किया तो उन्होंने उसको पहचाना नहीं, यीशु मसीह को। और इम्मौस के लोगों ने भी जब वो बातचीत करते जा रहे थे तो भी उन्होंने पहचाना नहीं। इसका मतलब पुनरुत्थान के बाद का जो रूप था यीशु मसीह का, वो पहले तो जो तरह से कुचला हुआ शरीर था उसका, वो पहले रिपेयर हुआ था। और दूसरी बात, उसका रूप जो पुनरुत्थान के पहले था वैसा नहीं था, अलग रूप में वो आया हुआ था। ओके, तो डेफिनेट है कि परमेश्वर हमारे सब कुछ को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 13 अध्याय 14 अध्याय पहले वचन से। परमेश्वर बेबीलोन को दंड देगा, पहले वचन से। बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी। जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया, मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से संकेत करो और उनसे ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है, मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है। ये वॉरफेयर के लिए ध्यान रखो। क्या किया परमेश्वर ने? वॉरफेयर के अनॉइंटिंग से भरे हुए लोगों को प्रार्थना में इकट्ठा बिठा दिया, जो परमेश्वर के प्रताप के कारण प्रसन्न है। हाँ, बिलीवर्स लोग वॉरफेयर में अनॉइंटिंग को प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर उनको देता है, क्योंकि वो अपने लिए लोगों को इस प्रकार से तैयार करता है। ओके, पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से, आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मनो सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारांगण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कंपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। वे खदेड़े हुए हरिन या बिन चरवाहे की भेड़ों के समान अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले वह बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा। उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी।
देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी का कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। वे तीरों से जवानों को मारेंगे और बच्चों पर कुछ दया न करेंगे। वे लड़कों पर कुछ तरस न खाएंगे। बेबीलोन, जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा। जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था, वह फिर कभी न बसेगा और युग युग तक उसमें कोई वास न करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहाँ जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहाँ शतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहाँ नाचेंगे। उस नगर के राज भवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गिदड़ बोला करेंगे। उसके विनाश का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। बंधुआई से लौटना 14 अध्याय पहले वचन से। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इस्राएल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उन्हीं के स्थान में पहुंच जाएंगे और इस्राएल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वालों को बंदी बनाएंगे और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। हालेलुया। बेबीलोन पर व्यंग्य 3 वचन से आगे। जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से और उस कठिन श्रम से जो तुझ से लिया गया विश्राम देगा, उस दिन तो बेबीलोन के राजा पर ताना मारकर कहेगा, परिश्रम कराने वाला कैसा नष्ट हो गया है। सुनहले मंदिरों से भरी नगरी कैसी नष्ट हो गई है। यहोवा ने दुष्टों के सोटों को और अन्याय से शासन करने वालों के लठ को तोड़ दिया है, जिससे वे मनुष्यों को लगातार रोष से मारते रहते थे और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। हालेलुया। ये बिलीवर्स लोगों का जाति ऐसा है। अब सारी पृथ्वी को विश्राम मिला है, वह चैन से है। लोग ऊंचे स्वर से गा उठे हैं। हालेलुया। सनोवर और लबानोन के देवदार भी तुझ पर आनंद करके कहते हैं, जब से तू गिराया गया तब से कोई हमें काटने को नहीं आया। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वह जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। वे सब तुझसे कहेंगे, क्या तू भी हमारे समान निर्बल हो गया है? क्या तू हमारे समान ही बन गया? तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। हालेलुया। ये शैतानी ताकतों के बारे में है। ओके, परमेश्वर ने उनको धकेल दिया है, हमको ऊंचा किया है। हमारे विरोध में आए हुए शत्रुओं की सेना जो उद्धार में हम आते ही टूट गई हमारे ऊपर से। ओके, और अभी वो शक्तियों को अंत क्या मिला है? क्योंकि वो अधोलोक में उतार दिए गए हैं। कीड़े उनके बिछौने हैं, केंचुए उनका उड़ना है। 12 वचन से आगे। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तरांकन से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा,
मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखा, शैतानी जगत के लोग शैतान को क्यों वर्शिप करते हैं, क्यों ऑकल्ट में जाते हैं, क्यों सीक्रेट सोसाइटीज में जाते हैं। उनको लगता है जो यहोवा परमेश्वर पवित्र बाइबल में से पता चलता है वो अलग परमेश्वर है, और हम जो है अभी हम शैतान के साथ जो निकलेंगे तो वो अलग जाति के, कुछ तो हमारा भी एक ठिकाना होने वाला, ऐसा उनको लगता है। ओके, ऑकल्ट वाले उनको लगता है हम कुछ तो अलग प्रकार का एक सिंहासन स्थापित करने के लिए निकले हैं। ओके, सीक्रेट सोसाइटी वालों को लगता है बिल्कुल इन सब से अलग हमारी एक दुनिया हम स्थापित करने के लिए निकले हैं। ठीक है, इसके लिए अलग अलग शक्तियों को लोग ऊंचा करते हैं, उनको लगता है उनका बसेरा हो जाएगा। ओके, नहीं, ऐसा कोई नहीं खड़ा रहने वाला है। ठीक है, सबके लिए परमेश्वर ने अंत दे दिया है। सिर्फ केवल और केवल यीशु मसीह के नाम में जो जिएंगे वही लोग जीवित रहेंगे, बाकी सब ठिकाने गिरा दिए जाएंगे, सब हिला दिए जाएंगे, झटक दिए जाएंगे। ओके, तो मूर्खता है ऐसा कुछ भी करना। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। देखो, ये है उनका एंड। वो अधोलोक के गड्ढे के तहे तक, गहराई तक उसको उतार दिया जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। ये है उसके पराक्रम जो आप अभी सहन कर रहे हैं। ओके, आपके परिवार के लोगों को फूट डालकर तोड़फोड़ किया जाता है, आपके परिवार के रिश्ते बिगाड़ दिए जाते हैं, आपके जीवन के आनंद खराब कर दिए जाते। कौन कर रहा है? यही वो शैतानी शक्तियां कर रही है। और इसके बारे में परमेश्वर कह रहा है तुझे तो पाताल के एकदम, अधोलोक के एकदम तह तक नीचे उतार दिया जाएगा। ओके, और हम उसको देखकर ये कहेंगे, ये है वो जो हमारे घर में परेशानी ला रहा था, ये है वो जो हमारे लोगों को बीमारियां दे के मार रहा था, ये वो है, ऐसा उसको चिढ़ाएंगे लोग। हालेलुया। तो ध्यान दो, जगत के अंदर कोई शक्ति रुकने वाली नहीं है। झटके लगा लगा कर उनको अधोलोक के तहे में लेकर जाने वाला है परमेश्वर, और उसके पीछे चलने वालों को भी उसके साथ उस अधोलोक के तहे तक उतरना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का। ओके, ज्यादा पावर करके दुनिया के चकाचौंध बातों में फंसो मत। ओके, ध्यान रखो इस बात का। अगर है दिमाग तो सोच लो, ये परमेश्वर है जो बदलता नहीं है। ओके, आपकी डेस्टिनी जल्दी से जल्दी यीशु मसीह में रखिए, पावर के पीछे मत जाइए। 18 वचन से आगे, जाति जाति के सब राजा अपने अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तो निकम्मी शाख के समान अपनी कब्र में से फेंका गया, तो उन मारे हुओं के शवों से घिरा है जो तलवार से बीध कर गड्ढे के में पत्थरों के बीच में लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तो उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी न लिया जाएगा। उनके पूर्वजों के अधर्म के कारण पुत्रों के घात की तैयारी करो, ऐसा न हो कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए। देखा, कि वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाए। यानी आपको पता है, अदन बगीचे में से जब आदम को हटा दिया था, आदम और हवा को भगा दिया था, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत लगाया जो आग की तलवार को भी उसको उस गेट पर लगा दिया था कि वहां से दोबारा आदम और हवा एंट्री करने ना पाए। ओके, तो जीवन का फल रखवाली करने के लिए ये सब इंतजाम कराया था। यानी ये जो
शक्तियां हैं, ये जो शैतानी जगत है, ये जो अंधेरा है, परमेश्वर कहता है वो इतने ज़्यादा उनका नुकसान करके उनका घात कर दो, उनको रखो मत, उनके सारे कामों को बिगाड़ दो, उनको ज़रा भी अवसर मत दो अपनी लाइफ में कुछ काम करने का। कहीं ऐसा ना हो वे फिर उठकर पृथ्वी के अधिकारी हो जाएं, यानी दोबारा वो पृथ्वी को बंधुआई में लेकर जाने की ताकत वो दोबारा लेकर उठकर आते हैं और जगत में बहुत से नगर बसाए। ओके, तो और बहुत ज़्यादा सताएंगे लोगों को। इसके लिए जो मसीह इंसान है, जिस जगह में जो दुष्टता है, आप उसका मुकाबला कीजिए, आप उसका सामना कीजिए, आप उसको नाश कीजिए, उसको कंप्लीटली कुचल दो वहाँ से, क्योंकि उसकी सृष्टि ऐसी होती जाती है कि वो दोबारा से अपने राज्य बसाने लगता है, दोबारा से अपना एक जगत तैयार करने लगता है। उसको उठने मत दो वहाँ से। ओके, ये सारा वचन जो हमने पढ़ा, शैतान के विरोध का वचन, उसके जगह में बोलते रहो, उसको अपनी डेस्टिनी दिखाओ। वो आपको अपनी डेस्टिनी दिखा रहा है ना कि तू तो ये है, तू तो बदतमीज़ है, तू तो बदचलन है, तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो ये है, तू तेरा कुछ भला नहीं होगा, तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, तू ऐसे ही मरेगा, तू ऐसे ही मरेगी। ये सारा जो शैतान के जगत के शब्द निकलते आपके ऊपर, आप ये शब्द उसके ऊपर बोलिए। ओके, शैतान ये तेरे बारे में मैं बोल रहा हूँ, तेरा भविष्य क्या है, तू मेरी चिंता छोड़, तू अपनी चिंता कर। हालेलुया। जब कोई इंसान आपका विरोध करने के लिए आपको दिखाने लगेगा तो उसको बोला, भाई बंद कर दे, ज़रा शांत हो जा, मैं तुझे बता देता हूँ तेरा रास्ता कहाँ जाएगा। ओके ओके, आपको ये उसके सामने नहीं बोलना है, लेकिन आप अकेले में आकर ये बातें बोलना है, वो शक्तियों को सुनाना है और उसको बताना है, तू किधर से आया, तू वहाँ पे जाने वाला है अभी, तो मेरी चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर और चल निकल यहाँ से। मेरे मन में तुझे जगह नहीं है, मेरी सोचों में तेरी यादें नहीं रहेगी। जितना भी मैंने कुछ सहा होगा, नासरी यीशु के लहू से मैं धो देती हूँ, मैं अपने आप को शांत करती हूँ, आनंद आराम के अंदर मैं अपने आप को प्रवेश कराती हूँ। ओके, ये इस प्रकार से हमने हर नेगेटिव में से छलांग लगा के बाहर निकल आना है। ओके आगे देखिए 22 वचन, परमेश्वर बेबीलोन का नाश करेगा। 22 वचन से आगे, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उनके विरुद्ध उठूंगा और बेबीलोन का नाम और निशान मिटा डालूंगा और बेटे पोतों को काट डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको साही की बांध और जल की झीलें बना दूंगा और मैं उसे सत्यानाश के झाड़ से झाड़ डालूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर अश्शूरियों का नाश करेगा। 24 वचन से आगे, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निस्संदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा और जैसी मैंने युक्ति की है वैसी ही पूरी होगी, कि मैं अश्शूर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की युक्ति है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है और उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। जब दुष्ट आपके ऊपर चढ़ाई करने लगे तो इस वचन को उठाना है और बारंबार बोलना है कि मेरे यहोवा ने मेरे लिए युक्ति कर ली है और अब उसको कौन टाल सकता है, और उसका हाथ बढ़ाया गया है, कौन उसको रोक सकता है। बस आप ध्यान रखिए, आपके शत्रु को यही पीछे पलट जाने के लिए मजबूर कर देगा। आमीन। ये वचन को वॉरफेयर में यूज़ करना, कठिन समय में यूज़ करना। 26 और 27 वर्स बारंबार यूज़ करो। जितनी गैंग आपके विरोध है वो इस वचन के तलवार का मार सहन नहीं पाएगी। ओके, उसको पीछे पलटना पड़ेगा। परमेश्वर फलिस्तीन का नाश करेगा। 28 वचन से आगे, जिस वर्ष आहाज राजा मरा उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई, हे सारे फलिस्तीन, तो इसलिए आनंद न कर कि तुझे मारने वाली लाठी टूट गई, क्योंकि सर्प की जड़ से एक काला नाग उत्पन्न होगा और उसका फल एक उड़ने वाला और तेज विष वाला अग्नि सर्प होगा।
तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। हे फाटक तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे पलिश्तीन तू सबका सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा। ये वर्ड्स आपको आपके कठिन समय में बोलना है, ओके? क्योंकि ये वर्ड्स उन शक्तियों के विरोध जाता है जो आपको खाने के लिए छोड़ी गई है, ठीक है? आप इन शब्दों को मुंह से बोलते जाना है, वो शक्तियाँ सुनती है और ये वचन आग की तरह उनका विरोध करने के लिए निकलता है, ओके? ये सारा वचन जो मैंने पढ़ा अभी 22-26 वचन से आगे सब, तब जाति जाति के दूतों को क्या उत्तर दिया जाएगा? यह कि यहोवा ने सिय्योन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दीन लोग उसके शरण लेंगे। हालेलुया, उसमें शरण लेंगे, ओके? तो आप जब आप बोलते हैं मुश्किल समय है, मेरे लिए प्रार्थना करो, बीमारी का समय है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा कुछ बिगड़ रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे सताया जा रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो, तो आपने क्या करना है? ये प्रार्थना के ये शब्दों को लेना है और दिन भर जैसे आप फाइटिंग कर रहे हैं, जैसे आप किसी को विवाद करते हैं ना, झगड़े करते हैं, तो कैसे झगड़े करते हैं आप? कैसे करते हैं? सीधी मुंह बात नहीं करते हैं आप, टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, है ना? जो मन चाहे वैसे उछल उछल के आपके मुंह से शब्दों को फेंकते रहते हैं, है ना? तो आपने इन शब्दों को उठा उठा के फेंकना है, ओके? जितना गुस्सा निकालना चाहते हो शैतान के ऊपर, उतना इन शब्दों को बोलते बोलते निकालिए, ओके? मारिए उसको उन शब्दों से और देखिए उसकी ताकत कैसे गिरती है फिर, क्योंकि ये शब्द वो सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये शब्द परमेश्वर को उठा देता है, जगा देता है, आपके लिए सेनाओं को भेजने के लिए मजबूर कर देता है, ओके? और आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, जैसे आप फाइट कर रहे हैं किसी के साथ, दे धड़ाधड़ बोलते रहिए इन शब्दों को, और शक्तियाँ इन बातों को सुनते 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 मार खाते रहती है और वो पीछे हट जाती है, क्योंकि निश्चित और निश्चित है आखिरी शब्द परमेश्वर का रहता है। क्या है आखिरी शब्द? उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे। हालेलुया, उसकी प्रजा के दीन लोग उसमें शरण लेंगे। हालेलुया। तो हमारी शरण परमेश्वर, हमारा शरण स्थान है, ओके? हम अपने अंदर से परमेश्वर के शरण स्थान में हो जाएंगे और हम जीते हुए हो जाएंगे, आराम करेंगे, ऊंचे स्वरों में गाएंगे, आनंद और जश्न मनाएंगे, अभिषेक में उछलेंगे और भरपूर परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। ये अंत हमको मिलता है जब हम युद्ध में उतरकर जीत कर आते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ ये अनुभव आने के लिए रास्ते बना कर दे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम इन वचनों के अंदर अपने आप को दे देते हैं। हम जानते हैं खुदा परमेश्वर जो हमको डराता है, धमकाता है और पिता परमेश्वर हमें पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है, जो हमारा जीवन बिगाड़ने के लिए योजनाएं बनाता है, युक्तियां करता है, जो अपने आप को माहिर समझता है, महारथी समझता है, जितनी पावर्स ऑफ डार्कनेस को लेकर वो हमको डराने के लिए, हमको जीतने के लिए पिता परमेश्वर अपने जोर शोर से निकलता है, उतनी ही ज्यादा घमंड उसकी तोड़ दी जाएगी तेरी युक्ति के द्वारा। इस विश्वास को तूने हमें दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते। ये भला काम पवित्र आत्मा ने हमको सिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी जाति हमेशा संपन्नता में जिएगी, शांत और स्थिर और विश्राम में जिएगी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारा आबा पिता हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया फादर। कमजोरों को साथ देने के लिए हमारी सहायता कर खुदा। रोते हुओं के बीच में खुदा हम तेरे आनंद को लेकर आने के लिए हमारी मदद कर। बोझ से दबे हुओं को पिता परमेश्वर
तेरे विश्राम में लेकर आने के लिए हमारी सहायता कर। तेरे स्वर्ग की आवाज़ें हम में भर दे खुदा। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 24 चैप्टर 40 वर्स से 53 वर्स। 2 सैमुअल 21 चैप्टर 22 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 40 वचन से 53 वचन तक। दूसरे शमूएल की पुस्तक 21 अध्याय 22 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में बैठकर। अब आपको समझ में आया, परमेश्वर आराधना कहता है बाइबल रीडिंग को, आराधना कहता है उपवास और प्रार्थनाओं को। वो आराधना कहता है जब आप उसके गुणों से चलते हैं। वो आराधना कहता है उन बातों को जब आप उसकी मनपसंद बातों में से होकर आप लोगों के बीच में फैलते हो, तो वो उसे आराधना कहता है। हालेलुया। और वो कहता है ये आराधना तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुमको ढूंढ के निकाला है वो आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई के साथ। हालेलुया। तो ये आराधना है परमेश्वर को। आपने आराधना कर रहे हैं परमेश्वर को जब आप अकेले में बैठकर उसके वचनों को पढ़ते हैं। हालेलुया। और वो आराधना का रिवॉर्ड भी, फल भी आपको देता है। कितना प्यारा परमेश्वर है आपके लिए। ओके, तो ये समय गंवाना नहीं है माय फ्रेंड्स, आपने इसे निश्चित पढ़ना है। ओके, अकेले में बैठकर। और ये होने के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर का, आपको अनुग्रह का आत्मा जो कुवत देता है आपको ये सब पूरा करने के लिए। तो आप उस कुवत में, उस पवित्र आत्मा का लाभ उठाते हुए निश्चित आपने उसका लाभ उठाना है। 2 साल के अंत में आप जो देखेंगे परमेश्वर के उपयोग का बर्तन होकर, शाइनिंग, चमकता हुआ बर्तन होकर निखर कर आएंगे। हालेलुया। और ऐसा होने के लिए जो परमेश्वर ने अनुग्रह के आत्मा को हम में रखा है, हमने निश्चित अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर जिस डेस्टिनी में तो हमको रखना चाहता है, पहुंचाना चाहता है, हमें उसके लिए फिट एंड फिक्स कर इन वचनों के अंदर से, और हमें परमेश्वर ऑर्डरलीनेस में, व्यवस्थितपन में लेकर आ, ताकि हम परमेश्वर तेरे अनुग्रह से उस मंजिल का लाभ ले सके जो तूने हमारे लिए ठहराई है। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।